me when you're on with the live. We can start. We can start. Yeah, dear. Thank you. Thank you, Ms. Namrata. Namaste to all the global people of the world. My name is Simran Ahuja and तहे दिल से हम सब आपका स्वागत करते हैं. सबसे पहले मैं आप सब से नम्रता से कहना चाहूंगी, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया आपके ऑडियो म्यूट पर डाल दीजिए, जैसे हम सब में से किसी को भी डिस्टर्बेंस ना आए. हमारे ऑडियोज अगर हम साइलेंट पे डाल देंगे, हमारे वीडियोस ऑन रहेंगे और ऑडियोज ऑन साइलेंट प्लीज. तो आज इस अवसर पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ. On behalf of the entire भारत आइकॉन फैमिली, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महात्मा गांधी जयंती. एक लाइफ जिन्होंने सबकी जिंदगियां तो जरूर बदली, लेकिन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री इंडिया भी बदला, और एक कंप्लीट वर्ल्ड के लिए जो एक आइकॉनिक फिगर थे हमारे महात्मा गांधी जी. आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी शुरू करने से पहले to kindly join us for the national anthem. Ladies and gentlemen, humble request to all of you to kindly join us for the national anthem. Jana Gana Mana Adinayak Jaya He Bharata Bhaga Vidata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttar Hind Himachal Yamuna शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय भारत आईडी पासवर्ड डाल दिया ना. पकड़ लेंगे ये सब. जय 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 भारत माता की जय. इनकरेक्ट 1 2 3 4 पासवर्ड 1 2 3 4 ये दोबारा डालो. सब 2 है अभी. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपनी अपनी जगह लीजिए, और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहूंगी. सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी कि आज पहली बार भारत आइकॉन फैमिली का जो हमारा शो है, इवेंट है, देर से शुरू होता है, और आप सब जो लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पासवर्ड दिया हुआ है भारत आइकॉन, पर प्लीज हमारा पासवर्ड 1 2 3 4 है, और मैं क्षमा चाहूंगी आप सभी से इस देरी के लिए. आइए आप सबका दिल से स्वागत है. एक बार फिर से मैं आप सबसे हम रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने अपने ऑडियोज कृपया म्यूट पे डाल दीजिए, जैसे हम हमारा हो सके, टर्ब्यूलेंस फ्री हो सके. तो बहुत शुक्रिया. Ladies and gentlemen, I take this opportunity of welcoming our spiritual gurus this evening. We are from India. Very good morning to those in the United States and South American countries. And a very good afternoon to those who are May I please request all our esteemed dignitaries who are here with us on Zoom Live to kindly be on mute, please. Thank you very much. With all humbleness and love, we welcome our spiritual guru, Shraddha. Shraddha, can I request you to be on mute, please? Thank you. Yes. Be on mute. Thank you. A very good evening.
the ladies and gentlemen from across the world. With folded hands, we pay respect to spiritual gurus, our esteemed dignitaries from across the world who joined us this evening to celebrate Mahatma Gandhi's very, very important day. And to all my lovely friends, I take this opportunity of truly beginning this wondrous event with a lovely quote of Gandhiji. You all remember the power of Gandhiji's words and the power to change the world, which was very gentle and simple. Yet, he shook not just the entire nation, but the entire world. My dear lovely souls, to start with a quote by our greatest leader, Mahatma Gandhiji. The greatest of humanity is not being human, but in being a good human being. इसी beautiful quote से हम हमारे आज की शुरुआत करना चाहेंगे और आइए हम शुरू में एक बहुत ही लोकप्रिय गीत सुनना चाहेंगे जो सबके दिलों में वो भाव लाता है। हमारे साथ हैं हमारे वेरी सिंगर श्रद्धा जी जो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। श्रद्धा जी आपके दो गैजेट्स ऑन हैं तो इसलिए आप एक ही गैजेट ऑन रखेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। श्रद्धा जी प्लीज एक गैजेट ऑफ कर लीजिए, शुक्रिया। Thank you, Simran. I'm starting the bhajan, Bapuji's प्रिय भजन वैष्णव जन तो देने कहिए जी। जी। And thank you for this opportunity to Akhil Bansal ji. And सबको मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है?
Sorry. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा जी, आपका नाम ही श्रद्धा है। इतने प्यार और श्रद्धा से आपने ये जो गीत डेडिकेट किया है, हम शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, and to our esteemed dignitaries, we truly once again with folded hands welcome our spiritual gurus, all our knowledgeable scholars, esteemed dignitaries from across the world, ladies and gentlemen, to mark the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi ji. हम सब यहाँ पर इकट्ठा to talk about the contribution जो उन्होंने contribute किया है to the Indian independence movement, जो instruments रही हैं in bringing freedom to our country, और हमारी जो लाइफ में सुधार करने के लिए उनके जो इतने फेमस ब्यूटीफुल और वंडरस हैं। तो इसी कोट से मैं शुरू करना चाहूंगी। हमारे for the best leader कहते थे, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. हमारी learnings इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, और आज इस अवसर पर जहाँ भारत आइकॉन फैमिली आपके लिए एक ब्यूटीफुल कार्यक्रम लाए हैं, जहाँ हमारे renowned scholars हैं, spiritual gurus हैं, तो हम सब बिल्कुल तैयार हैं सीखने के लिए और आप सब से इंस्पायर होने के लिए। तो आइए ladies and gentlemen and my dear friends, हम इनवाइट करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारे esteemed dignitaries को, इससे पहले कि हम हमारे स्पीचेस शुरू कर सकें। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं of His Holiness आचार्य डॉक्टर लोकेश मनी जी, जो एक वर्सेटाइल थिंकर हैं, राइटर, पोएट, सोशल रिफॉर्मर, और कंटिन्यूअस अपने एफर्ट्स के साथ हमारे नेशन के कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं, यंगस्टर्स को राइट ह्यूमन वैल्यूज सिखा रहे हैं। चाहे हम अब कलयुग में हैं, फिर भी वो हमें हमेशा एनकरेज करते हैं और इंस्पायर करते हैं टुवर्ड्स द वैल्यूज जो गांधी जी बिलीव करते थे ऑफ नॉन वायलेंस, पीस एंड म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। तहे दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे हिज होलीनेस आचार्य डॉक्टर लोकेश मनी जी। और आज हमारे साथ हैं राजयोगिनी डॉक्टर बिनी सरीन जी, जो हमारे फाउंडर हैं ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर पीस एंड वेलबींग, पीस एम्बेसडर हैं और डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैं, जो एक खुद एनलाइटेंड सोल हैं, एक रिसर्च स्कॉलर हैं, और बस यही खूबसूरती सभी में फैला रहे हैं और सभी को खूबसूरत इंसान बना रहे हैं। तहे दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे राजयोगिनी डॉक्टर बिनी सरीन जी का। दोस्तों, आज हमारे साथ एक जाना माना नाम है, हमारी वेरी रिनाउंड बीजेपी स्पोक्स पर्सन मिस श्वेता शालिनी जी, जो खुद एक एंटरप्रेन्योर, स्पीकर, ब्लॉगर, कॉलमनिस्ट और बहुत ही पैशन से पॉलिटिक्स में हैं, जो एक विलेज को ट्रांसफॉर्म करती हैं, CSR एक्टिविटीज करते हैं, और ऑफ कोर्स हम सबको जोड़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये है हमारा फ्यूचर।
जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं शर्मिला ओसवाल जी, जिनकी जर्नी शुरू हुई थी एक छोटे से गांव से, वहां से लेकर इंग्लैंड तक, जो एस्पायर करती हैं हम सबको, क्योंकि वो बन गई बैरिस्टर। जी हाँ, और इन्हें फुल स्कॉलरशिप मिली थी और ऑफ कोर्स ये इनवाइट की गई थी बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। हम तहे दिल से मिस श्वेता शालिनी जी, हमारी बीजेपी स्पोक्स पर्सन, और शर्मिला ओसवाल जी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज हमारे लेजेंड हैं श्री गजेंद्र सिंह चौहान जी। जी हाँ, रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट और एक रिनाउंड एक्टर, और जिन्हें हम खूबसूरती से याद करते हैं युधिष्ठिर की तरह फ्रॉम आवर हिस्टोरिक टेलीविजन सीरीज महाभारता। सर, truly honored by your presence। और हमारे साथ हमारे वेरी रिनाउंड इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर मिस्टर टीपी अग्रवाल जी। जी हाँ, चाहे वो लाली की शादी हो या मैं लड्डू दीवाना या पुलिसगिरी, अपनी फिल्मों से वो सबको राइट वैल्यू सिखाते हैं, क्योंकि जब भी हम फिल्म से सीखते हैं ना, बहुत आसानी से सीख जाते हैं और वो बात जरूर हमारे दिल पे लग जाती है। तहे दिल से हम स्वागत करते हैं मिस्टर टीपी अग्रवाल जी का, अ वेरी रिनाउंड फिल्म प्रोड्यूसर। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे ट्रू हीरो हैं मेजर जनरल दिलावर सिंह जी, जो हमारे फॉर्मर डायरेक्टर जनरल NYKS, कमेंडेबल, जिन्होंने वर्क किया है एज द मेंबर ऑफ कंसल्टेटिव कमिटी, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, एडवेंचर हो या यूथ के प्रोग्राम्स हो। And with lots of gratitude, we truly welcome you, Major General Dilavar Singh ji. And to my lovely souls, we are truly honored by the humble presence of Swami Chakrapani Maharaj ji, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं संत महासभा के। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैम, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्या आप अपना ऑडियो म्यूट पे रख सकते हैं प्लीज? नम्रता जी, अगर आप उनका ऑडियो म्यूट कर सकते हैं, और इफ यू कैन प्लीज send them a message. It's a humble request to you, Namrata ji, please. बहुत शुक्रिया. We are very sorry for this. बहुत शुक्रिया to all our researched, all our esteemed dignitaries, scholars from across the world, and we are blessed to have our spiritual gurus with us today. Ladies and gentlemen, and to everyone present here, before we go ahead with our esteemed speakers, it's time for me to introduce the visionary man who always wanted to make this world a better place. जी हाँ, हमारे साथ हैं Chairman and Managing Director and the founder of भारत आइकॉन, जिन्होंने ये भारत आइकॉन फैमिली क्रिएट की गई है 7 सालों में। हमारे साथ हैं रिस्पेक्टेड अखिल बंसल जी, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर है और मीडिया और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के जाने माने नाम हैं। फाउंडर हैं ऑफ मिस भारत आइकॉन, मिसेस भारत आइकॉन एंड मिस्टर भारत आइकॉन, और ऑफ कोर्स द स्पेक्टेकुलर जो अवार्ड्स होते हैं महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के, और ऑफ कोर्स जो टैलेंट एकेडमी है उसके भी फाउंडर हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ मुंबई भारत आइकॉन और कमिटी मेंबर ऑफ इस्कॉन जू के और ट्रेजरर ऑफ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन मुंबई और द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल हेरिटेज फाउंडेशन अखिल बंसल सर जी से कि प्लीज 2 शब्द फरमाइए और सभी का स्वागत कीजिए। मिस्टर अखिल बंसल, प्लीज। अखिल बंसल सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। मैं इस गांधी जयंती पे आप सब गेस्टों का स्वागत करता हूं, और हम लोग ऐसे ही जो फेस्टिवल्स आते हैं उन पे अपना एक पर्टिकुलर अवेयरनेस का सिस्टम रखते हैं, तो आई होप करते हैं कि फर्दर हम ये काम करते रहें। धन्यवाद टू ऑल गेस्ट, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अखिल बंसल सर कि आप हम सबको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमें ब्यूटीफुल हमारी सोलफुल डिग्निटीज को सुनने का मौका मिले। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अखिल सर कि अगर आप म्यूट पे प्लीज डाल देंगे अपना ऑडियो। अखिल बंसल सर, प्लीज इसे म्यूट कर दीजिए, हमारा ऑडियो म्यूट पे रखेंगे प्लीज, अपने ऑडियो म्यूट पे रखिए। अखिल सर प्लीज, अखिल बंसल
अपना ऑडियो म्यूट पे डाल सकेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे साथ आज हमारे गुरु हैं और हम तहे दिल से स्वागत करते हैं with tons of gratitude and all our love, our founder of Ahimsa Vishwa Bharati, His Holiness Acharya Dr. Lokesh Muni जी, जो एक versatile thinker, writer, poet, social reformer हैं, जिन्होंने non-stop efforts लिए हैं towards peace और जो Indian society में लगातार 3 से ज्यादा decades से काम कर रहे हैं to truly imbibe हम सब में the humanitarian values। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हम जरूर चाहेंगे आज इस अवसर पर, महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर, सर आप प्लीज हमें हाईलाइट कीजिए अबाउट नॉन वायलेंस, कि आज के जमाने में हम कहते हैं कलयुग का जमाना, लेकिन आप ही हमारे गुरु हैं जो इस कलयुग में भी स्वर्ग ले आते हैं। तो हम प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हिज होलीनेस आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, प्लीज एड्रेस एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र सर। सबसे पहले तो मैं भारत आइकॉन फैमिली को इस बात के लिए एक संत होने के नाते साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर इतना सुंदर कार्यक्रम भारत आइकॉन अवार्ड के साथ साथ जो अहिंसा पर चर्चा रखी है। बंधुओं और बहनों, जब मैं देखता हूं इस मीटिंग के अंदर एक से एक शख्सियत यहां पर मौजूद है। हमारे जनरल स्वयं यहां उपस्थित हैं। सिमरन आहूजा जी ने बहुत सुंदर ढंग से संचालन किया। हमारी बहन शर्मिला ओसवाल जी हैं, गजेंद्र चौहान जी हैं, टीपी जी हैं और हमारी बहन डॉक्टर बिन्नी सरीन उपस्थित होने वाली है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सबसे पहले आज जो पूरी दुनिया के अंदर माहौल है, अगर हमें महात्मा गांधी की अहिंसा के प्रैक्टिकल स्वरूप को अगर अप्लाई करना है जीवन में, मैं कहना चाहूंगा हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें और फिर से एक धर्म गुरु होने के नाते कहूंगा, हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी हम आदर और सम्मान करना सीखें। यहीं से अहिंसा का शुभारंभ होता है। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है और लोकतंत्र मतभेद को भी विकास का माध्यम माना गया है। किंतु जब मतभेद मनभेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। मैं बहन सिमरन जी ने कहा कि अहिंसा पर आचार्य जी प्रकाश डालेंगे। हमारी दुनिया, सभी राष्ट्र अहिंसा और शांति की चर्चा भी करते हैं, उसके फल भी चाहते हैं, किंतु मैं कहना चाहूंगा हमारी दुनिया का ये बहुत बड़ा विरोधाभास है कि हम फल अहिंसा का चाहते हैं, हम फल शांति का चाहते हैं, किंतु चलते उन पगडंडियों पर है जो हिंसा के मुकाम पर पहुंचाती है। दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिवर्ष अपने बजट के अंदर लाखों करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए उसकी रिसर्च पर खर्च करती है, किंतु अहिंसा के प्रशिक्षण का कई कार्यक्रम चलता हो अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आया है। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, अगर हमें दुनिया से युद्ध, हिंसा और आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो हमें उसके रूट कॉज को ढूंढना होगा। हमें उसके जड़ में जाकर के, उसके मूल में जाके चिंतन करना होगा। यूनेस्को का संविधान भी इस बात को कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, होता है। ये साइंटिफिक सच है कि हमारे एनिमल ब्रेन भी मौजूद है जहाँ पर 5 प्रवृत्तियां जन्म लेती है।
हमारे इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है, जहाँ पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। आज अपेक्षा है एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए, नियोकॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32-33 स्टूडेंट को शूट करके रख दिया। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर हमें इस दुनिया से युद्ध, हिंसा और आतंकवाद को खत्म करना है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम करता है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। आज अपेक्षा है प्राइमरी एजुकेशन से हम पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करें। मैं यूनाइटेड नेशंस में इसी चर्चा को लेकर के गया था और उस समय के यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल लोरेंजो फ्रांसिस्को स्वयं उपस्थित हुए। आज अभी 1 घंटे पूर्व ही मैं गांधी जी के 30 जनवरी मार्ग पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं सर्वधर्म प्रार्थना में था। उस समय भी मैंने यही निवेदन किया कि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को, अहिंसा के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम युद्ध, हिंसा और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आदमी बदलाव केवल सिद्धांत से नहीं आता है, केवल उपदेश से नहीं आता है, बदलाव आता है प्रयोग से। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, जितना समय निर्धारित है मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे भारत आइकॉन अवार्ड ने, परिवार ने जो एक कार्यक्रम रखा है, हमें इसे दूर तक लेके जाना है और आज जिन्हें अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। और अंत में जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है उनके सम्मान में 4 पंक्तियां कहूंगा। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, अरे गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आप जो सभी समाज के निर्माण के लिए, उत्थान में, सृजन में लगे हैं, उनको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और भाई अखिल बंसल जी को बहुत बहुत बधाई, सिमरन आहूजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बहुत शुक्रिया हिज होलीनेस आचार्य डॉक्टरेट लोकेश मुनि जी। आप हमेशा आपके हर एक शब्द वर्ड ऑफ और इतने नॉलेजेबल होते हैं जो बिल्कुल हमें सिखाते हैं और सही शिक्षा देते हैं। आपने बात की एजुकेशन की, लेकिन सही शिक्षा हमें आपसे मिलती है, क्योंकि जो हमारे विचार होते हैं, एजुकेशन नॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन जो सही विचार और सही थॉट प्रोसीजर देते हैं वो आप हमें देते हैं। आवर हम्बल थैंक्स टू हिज होलीनेस आचार्य जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं आपके। एजुकेशन की बात हुई है तो हमारे साथ आज हैं द वेरी रेनाउंड एंड द वेरी अमेजिंग हमारी बीजेपी की स्पोर्ट्स पर्सन, उनका नाम है मिस श्वेता शालिनी जी। वो एक IT प्रोफेशनल है, बिलोंग करते हैं टू द पॉलिटिकल फैमिली, जिन्होंने करीबन 9 स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है। खुद एक एंटरप्रेन्योर है, स्पीकर है, ब्लॉगर, कॉलमनिस्ट और बहुत ही पैशनेट है अबाउट पॉलिटिक्स। जैसे वो बिलीव करते हैं कि विलेज को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए, CSR एक्टिविटीज में किस तरह से हम पूरा इनिशिएटिव लें, इंटरेस्ट लें और सभी को रिक्वेस्ट करें कि वो भी उनके साथ हम आगे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया और भारत की डेवलपमेंट की तरफ चलें। अपने पूरे जो IT के जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है आजकल, वो सब कुछ वो हमेशा हर एक कार्य में डालते हैं और इसलिए हम कहते हैं वो है हमारी आज की नारी एंड द मदर ऑफ ब्यूटीफुल ट्विंस। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं for your valuable time and thank you very much. Maybe please welcome our BJP spokesperson Miss Shweta Shalini ji. तहे दिल से आपका स्वागत है मैम।
हाँ तो अखिल बंसल साहब, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आपका ऑडियो म्यूट पे डाल दीजिए. नम्रता, कैन यू प्लीज पुट सर ऑन म्यूट? इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू. थैंक यू. May we please kindly welcome our respected honorable BJP spokesperson, Ms. Shweta Shalini ji, please. Sorry, Simran. Shweta Shalini will come in a few minutes. Can we proceed with yeah? Absolutely, absolutely. I'm truly delighted to welcome the lovely lady जिसने शुरुआत की थी एक विलेज से. जी हाँ, वो कहते हैं ना, गांव की छोरी चली लंदन, चली इंग्लैंड बैरिस्टर बनने. बिल्कुल इनकी स्टोरी रूबरू एक फिल्म स्टोरी की तरह है. इन्हें इनवाइट किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो ये खूबसूरत कार्य करते हैं वाटर पर. जी हाँ, वाटर जैसे हम कहते हैं बहुत ही एक अहम सब्जेक्ट है. इन्होंने सबको इंस्पायर किया है अपनी स्टोरी से और अपने स्कॉलरशिप पे. एंटायर 28 लाख इन्हें मिले थे स्कॉलरशिप में जब ये गई थी ऑल द वे टू ब्रिटेन, इंग्लैंड में गई थी अपनी पढ़ाई करने, और वहां से फिर से वापस आकर भारत देश में कुछ कर दिखाने का कार्य इन्होंने किया है. हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. मैं इनके बारे में कौन से शब्द इस्तेमाल करूं? द वन पावर वुमन कहना चाहूंगी इनके लिए. कंप्लीटली मैग्निफिसेंट. हम तहे दिल से स्वागत करते हैं द वेरी अमेजिंग, जिन्होंने इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स तो जीते हैं, बट जिनको वेलकम किया था और फेलिसिटेट किया था हमारे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी. जी हाँ, सेवरल कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ने इन्हें फेलिसिटेट किया है. तहे दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे मिस शर्मिला ओसवाल जी का. और शर्मिला जी, आज इस अवसर पर मैं जरूर चाहूंगी कि आज हमें आप बताइए ऑन द वैल्यूज ऑफ गांधी जी, क्योंकि आप हमेशा बिलीव करती हैं ऑन द वैल्यूज ऑफ बीइंग अ ट्रू गांधीयन. तहे दिल से आपका स्वागत है शर्मिला जी. Am I audible? Very well, very well. Am Such I an honor audible? seeing you. बिल्कुल शर्मिला जी. I'm sorry, actually, lot of disturbances are there. So laptop is not working, so I'm trying to operate on the phone. So I'm. You're perfect. You're perfect. बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला जी. So सभी को सादर अभिवादन और अखिल जी बहुत आज के कलयुग में 150वां गांधी जयंती जो मनाने का सुअवसर अखिल जी बंसल ने जो ये लिया है और ये बीड़ा उन्होंने उठाया, ये बहुत ही सराहनीय है. क्योंकि what I have heard and what I know that he's from a construction and business background. So आज की तारीख में बहुत रेयरली ऐसे पर्सनालिटीज या कॉर्पोरेट शख्सियत आपको मिलेगी जो गांधी जी का जयंती सेलिब्रेट कर रही है. तो जैसे गुरु जी ने अभी बताया और गुरु जी की वैल्यूज, आई थिंक विथ ऑल वी सैल्यूट हिम. अभी जो लोकेश मुनि जी महाराज साहब ने भी जो बातें रखी, गांधी जी का जयंती आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 150वां, मुझे लगता है कि हम सारी दुनिया जानते हैं अहिंसा, अपरिग्रह या उनकी जो बेसिक वैल्यूज रही है. व्हाट वर हिज वैल्यूज? हिज वैल्यूज वर change yourself first. So are we really doing that? No, sorry. मतलब ये जो 150वां बर्थडे हम उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आई थिंक हमने ये इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि उनकी जो लाइफ चेंजिंग लेसन्स थे कि what can how your life can be changed. So change yourself first. No, sorry, because उनके आपको शुगर और जैगरी की कहानी पता होगी. I'm sure Simran, you all are aware of his sugar story. Are you aware of his sugar story? I'm just asking, confirming. So, well, sugar story उनकी मैं खाली तो एक माँ अपने बच्चे को लेके गांधी जी के पास जाती, बच्चा बहुत ज्यादा शुगर खाता है, प्लीज आप इसे रोकिए, और ये सुनता नहीं है, बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा वो शुगर खाता है. तो गांधी जी उसे पास इतने के आई आश्रम तक, और गांधी जी ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, फास्ट तक नहीं कहा. तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा, पर गांधी जी ने उन्हें कहा कि आप आती है. तब गांधी जी उसे कहते हैं कि हाँ, अभी मतलब वो बेटे को बोलते हैं कि बेटा शुगर खाना बुरी बात है या ये सेहत के लिए हानिकारक है. तो मम्मी उसकी कहती है कि बापूजी, आपने जब मैं 2 हफ्ते पहले आई तब आपने क्यों नहीं मेरे बेटे को कुछ कहा.
कि तब मैं भी शर खा रहा था। सो सबसे पहले आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, टू चेंज द हैबिट ऑफ अदर्स। और मैं अगर किसी को प्रीच करूं तो पहले लेट मी एक्सपीरियंस माई सेल्फ दैट शुगर बंद करने से मुझे मीन्स आई हैव टू गो थ्रू, देन आई कैन टेल समबडी। सो after changing yourself first, strength through peace. See, if you know, from South Africa to India, his whole journey, his strength, everything was through the peace. Everywhere it was all about peace. ब्रिटिशों से जो लड़ाई थी, मतलब जो अंग्रेजों के साथ भारत की लड़ाई थी, अब देखिए महात्मा गांधी जी ने थ्रू पीस, मतलब कोई बड़े टूल्स, राइफल या ऐसे कोई भी शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र ऐसे कुछ भी नहीं लगा, उन्हें तो वस्त्र भी नहीं लगे। सो आप देखिए कि बिना इन सारे टूल्स के दिस मैन फॉट विद दिस ऑल फॉरेनर्स, अंग्रेजों को भगा दिया। किससे? सिर्फ पीस से, शांति से। सो द स्ट्रेंथ व्हाट ही हैड वाज पीस। वायलेंस इज अननेसेसरी, ही इज द बेस्ट लाइफ लेसन। नाउ अगर आप देखेंगे, वायलेंस मतलब मर्डर का नाम वायलेंस नहीं है, किसी को मारना वायलेंस नहीं है, जोर से बोलना, एब्यूज करना, गाली गलौज करना, किसी के बारे में गलत बोलना, एवरीथिंग इज अ वायलेंस। तो ये सारे अहिंसा के अंडर में ही आते हैं, जो मेरे ख्याल से हर जगह आपको हर चप्पे चप्पे पे ये मिलेगा। परस्यू द ट्रूथ। आई एम वेरी सॉरी टू से प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिकल, सोशल, religious, all the leaders are here, but I want to ask, pursue the truth. Do we live with the truth? I'm very sorry to say, none of us lives with the truth. कोई एक इंसान मुझे यहाँ पे बता दे कि मैं 100% 100% ट्रूथ के साथ रहता हूँ? No, I don't agree with it, and I'm very sorry to say, महात्मा गांधी जी ऊपर बैठ के ना रो रहे होंगे कि मैंने जो प्रिंसिपल्स या मैंने जो प्रीचिंग या मैं जो जितने भी टाइम रहा, और आज 150वीं जो जयंती है, भारत से ज्यादा आप देखेंगे बुर्ज खलीफा को महात्मा गांधी का सेलिब्रेशन का मॉन्यूमेंट बना गया। न्यूयॉर्क में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, अफ्रीका देख लीजिए, ट्रफलगर स्क्वायर में देख लीजिए। दोज ऑल पीपल आर रियली मीन कि गांधी जी जैसा रहना चाहते हैं, बट जो गांधी जी जिस लैंड के थे, जो हमारे थे, we don't want to live like him. आप आज की जनरेशन को देख लीजिए, हम सबको देख लीजिए, forget about आज की जनरेशन, मैं तो कहूंगी सबको ही देख लीजिए कहाँ पे ट्रुथ प्रिवेल है। सो आई एम सॉरी टू से, बट उनकी जो ये वैल्यूज की जो प्रीचिंग है, हम उनसे कई ज्यादा दूर जा रहे हैं। उनकी लास्ट परस्यूइंग थी फॉर लाइफ चेंजिंग वाज वॉच योर थॉट्स। Do you really watching your thoughts? आपके अंदर कुछ और चल रहा है, आप बाहर कुछ और बोल रहे हो। So none of us is, truthful. None of us, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम सारे अहिंसक है। सिर्फ वेजिटेरियन होना अहिंसक नहीं बताता है। आपकी जो विचार सरणी है, विचारधारा, ये सब आपको बताता है कि आप सही मायने में एक अहिंसक है। तो गांधी जी ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारे देश को स्वतंत्रता दी, बहुत कुछ। मतलब आज उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आज उन्होंने जो पेन्स उठाए, वस्त्र तक उन्होंने छोड़ दिए हमारे लिए। हम उनके उस स्वतंत्रता के सानिध्य में, उस बनियन ट्री मतलब पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे छाया, हम लग्जरी में, आई विल कॉल इट एज अ लग्जरी, हम उस अंग्रेजों के टाइम में नहीं थे, हम लग्जरी आज अनुभव कर रहे हैं। और ये किसकी बदौलत? गांधी जी की बदौलत। आज 150वें सेलिब्रेशन पे मुझे लगता है बड़े बड़े भाषणों की जरूरत नहीं है, जरूरत इंट्रोस्पेक्शन की है कि क्या हम सही मायने में आर वी ट्रूथफुल, आर वी चेंजिंग द वर्ल्ड थ्रू सिंपल लाइफस्टाइल। उन्होंने एनवायरमेंट, आज ये क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, कोरोना जो हम देख रहे हैं ना, वी आर ऑल अवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। अगर गांधी जी की वैल्यू पे अगर हम टाइम एवर any one of us will face. So summarizing, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी, आपने मुझे बुलाया। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं आज जाते जाते ये चैलेंज देके जा रही हूँ और ये प्रश्न निर्माण करके जा रही हूँ कि क्या सही में वाकई में आर वी लिविंग एनी वन ऑफ अस ट्रूथफुल लाइफ टू अवर सेल्फ। ये इंट्रोस्पेक्शन हर कोई अपने दिल में करे, दिमाग में करे सोने से पहले। और गांधी जी का एक भी वर्च्यू, एक भी प्रिंसिपल, एक भी वैल्यू अगर हम अपनी जिंदगी में अगर हम उसको अवतर लेते हैं तो जिंदगी का क्या नाम बन जाएगा, सोचिए। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, लेकिन मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी सिर्फ उन्हीं की है जो मर कर भी जिया करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। क्या बात है शर्मिला जी, आपने जो अपनी शुगर की स्टोरी से शुरुआत की,
तो वो कहते हैं ना कि हर एक बात चुभ रही थी, तो आपने बिल्कुल रूबरू आपने वही काम किया जो बिल्कुल सही मैसेज जाना चाहिए कि अब जब लॉकडाउन का समय आया था, 7 महीने हो गए हैं आज, और हम सब सोचते थे कि घर बैठ के क्या करें, तो हम सभी ने इंट्रोस्पेक्ट किया है। और शर्मिला जी, हम सबको बहुत मुश्किल लगता है टू फॉलो दिस पाथ, और आज जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सही राह दिखाएंगे, तो हम जरूर चाहेंगे कि वो हमें गाइडेंस दें, और जैसे कि हमारे हिज होलीनेस आचार्य सर ने भी दी है, और बस यही हम चाहेंगे कि सभी हमें दें। शर्मिला जी, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप हमें इंस्पायर करती है, क्योंकि आप हमारे इस टाइम की होकर, जो हम कहते हैं जो अभी युग चल रहा है, इस टाइम की होकर भी आपने वो कर दिखाया है कि जितना हो सके आप फॉलो करते हैं, और आपको पता है कि हम सब आपके फॉलोअर्स हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हर एक बात का जवाब हम सबको अपने आप से पूछना है। और सिमरन, ये जो मैंने पहना हुआ है ये हथकरघा का बना हुआ है, एंड आई वांट टू जी। टेल यू एंड अखिल जी को कि CSR इनिशिएटिव, इफ यू ऑल कैन जॉइन एन इनिशिएटिव, हथकरघा से हमारे जो सारे आर्टिजन्स हैं, महिलाएं हैं, हमारी 70,000 से ज्यादा महिलाएं जो हथकरघा पे बनाते हैं। जो मैंने पहना है ये वस्त्र जो है ये हथकरघा से बना हुआ है। तो आज 150वीं जयंती सही मायने में तभी होगी जब हम सारे हथकरघा को प्रमोट करेंगे। सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस हियर टू प्रमोट हथकरघा। चरखे से बनाए हुए उपकरणों को, वस्त्रों को आप प्रमोट कीजिए, पहनिए, देखिए आपके अंदर कितनी बड़ी वैल्यू सिस्टम आ जाएगी, ट्रस्ट मी। शर्मिला जी, ये हम जरूर आपसे कहना चाहेंगे आज ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अखिल बंसल सर, जो हमारे फाउंडर हैं, कि हम डेफिनेटली इसे फैशन शो में भी लाना चाहेंगे, क्योंकि हमने राउंड रखा था, खादी राउंड, जहां पर हम सबसे कहते थे कि फ्यूजन में किस तरह हम खादी को भी अच्छी तरह से ला सकते हैं, और खादी में भी हम बहुत स्मार्ट दिख सकते हैं। सो थैंक यू, आप एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, और आपने आज जो ये वस्त्र पहना है, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और हम आपके साथ हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि हमारा जो अगला ब्यूटी पेजेंट होगा उसमें आपका एक राउंड होगा, जो हमारे ब्यूटीफुल उन्होंने जेन्युइनली बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं शो स्टॉपर, और पूरा फैशन। बिल्कुल शर्मिला, तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। आप हमेशा इतने थॉट प्रोवोकिंग हमें आइडियाज नहीं बताते हैं, लेकिन हमें वो एहसास दिलाते हैं। प्लीज अपने आप पर काम कीजिए। थोड़ा सा अगर हम प्रेयर्स करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वो जवाब हमें मिल जाएंगे, और हमारे गुरुज आज हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर ट्रूली ऑनर्ड to have the humble presence of our legend here with us. जी हाँ, जिन्हें हमने महाभारत में देखा था, और जब महाभारत कहानी की बात आती है, युधिष्ठिर की बात आती है, तो हमें लगता है कि ये भी काफी चैलेंजिंग था। उनकी आवाज में बस मालिक की देन है, ऐसी कशिश है कि हम सब उनकी आवाज में खो जाते हैं। Ladies and gentlemen, it's truly an honor for all of us to welcome our chairman of the Film and Television Institute. जी हाँ, FTII के हमारे फॉर्मर चेयरमैन जी गजेंद्र सिंह चौहान जी, जो एक फिल्म, टेलीविजन और फिल्म वर्ल्ड का एक वेरी renowned नेम है। Such an honor for all of us to have your humble presence. May we please invite respected श्री गजेंद्र सिंह चौहान जी। एंड हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फिल्म्स के दौरान हम कोशिश करते हैं कि गांधी जी के वैल्यूज हर घर तक पहुंचे, हर दिल में पहुंचे। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप फिल्म्स के दौरान किस तरह हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। टू प्लीज हाईलाइट अस ऑन द सेम। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी। सबसे पहले तो मैं बंसल जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं भारत आइकॉन जो परिवार है उसका एक हिस्सा हूं, और अखिल जी जो हैं अच्छे मित्रों में से हैं। आज आपके पैनल पे बहुत ही गुणी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति आए हैं, सब अपने अपने विचार रखे हैं, और मुझे लगता है कि इन विचारों को समाहित करके कोई ना कोई परिणाम अवश्य निकलेगा, और एक बहुत अच्छा संदेश जो लोग भी इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक पहुंचेगा। आज 151वीं जयंती है गांधी जी की। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ पोरबंदर में, और वहां से उनकी जर्नी जो 30 जनवरी 1948 तक चली। तो उनका जीवन जो है बहुत ही प्रेरणादायक रहा। उन्होंने स्वयं बहुत सारे संदेश उनके जीवन से मिलते हैं, बहुत सारी प्रेरणाएं हमें मिलती हैं। न्याय का रास्ता, सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, और हाथ में एक लाठी लेकर एक भारत जैसे देश को आजाद करवाना, अंग्रेजों को मजबूर कर देना भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर, ये हमारा देश छोड़िए और ये हमारा देश है,
आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये सारे संदेश जो है गांधी जी ने दिए और इनके लिए लड़ाई लड़ी, और भारतवासियों ने भरपूर उनके साथ खड़े होकर उनका साथ दिया, और इन सब चीजों का परिणाम ये है कि आज हम एक आजाद देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। गांधी जी का 3 बंदर वाला किस्सा सब जानते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब आप ये तीनों काम नहीं करते हैं तो बुरा भी मत कीजिए, बुरा भी मत करो। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें मिलाकर गांधी जी के जितने सारे संदेश हैं, हमें, हमारी पिछली जनरेशन को और अगली जनरेशन को बहुत ही प्रेरणाएं देते हैं। और जहां तक फिल्मों का सवाल है, गांधी जी के ऊपर फिल्म बनी थी, बहुत ही मशहूर फिल्म गांधी, जिसमें बैन किंगस्ले साहब ने उनका रोल भी अदा किया था। बहुत खूबसूरती से उन्होंने निभाया था, और लगता था कि असली गांधी जी जो हैं वो स्क्रीन पे उतर आए हैं। यहाँ आचार्य लोकेश जी हैं, मेरा एक प्रश्न है छोटा सा उनसे, अगर आप उन तक पहुंचा सके। जरूर जी, प्लीज प्लीज। महाभारत का एक श्लोक है जो गांधी जी ने हमेशा कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। ये पूरा श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। मतलब अहिंसा जो है ये हमारा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो उससे भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये गांधी जी ने आधा ही क्यों प्रयोग किया, मैं इसको देख के हमेशा अचंभित होता हूं। क्योंकि धर्म की रक्षा करना जो है वो हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है। गांधी जी सिर्फ अहिंसा परमो धर्म पे अटक गए, उसके बाद का हिस्सा जो उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो मुझे ये थोड़ा सा अचंभित करता है। और एक वक्तव्य मैंने गांधी जी का कहीं पढ़ा था, वैसे तो गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में एक ही फिल्म देखी है, राम राज्य, और उन्होंने कहीं कहा था कि नवयुवकों को फिल्मों से नहीं जुड़ना चाहिए। ये मुझे बहुत अचंभित करता है। उन्होंने ये कहा था कि नवयुवकों को फिल्म में जितना टाइम वेस्ट करते हैं उसको उनको लगाना चाहिए देश की प्रगति में। मुझे लगता है आज गांधी जी होते और ये वर्चुअल मीटिंग देखते तो वो भी अचंभित रह जाते, और सिनेमा की कितनी इंपॉर्टेंस है आज शायद वो अपनी बात को बदल देते। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैंने जो पढ़ा, मैं जितनी मेरी जानकारी है थोड़ी बहुत, मैं उसी के आधार पे बात कर रहा हूं। मैं गांधी जी की बहुत सारी बातों से प्रभावित हूं। अहिंसा जो शब्द है, अगर इसमें सकारात्मकता आ जाए जीवन में, अहिंसा के साथ साथ हम पॉजिटिविटी भी रखें, तो मुझे लगता है उस अहिंसा का जो ताकत है वो कई गुना हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, सत्य का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, ये सारी चीज, समरसता, जिन्होंने हरिजन शब्द दिया कि सब हरि के जन हैं, ये बहुत बड़ी बात दलित वर्ग के लिए गांधी जी ने कही थी। तो ये सारी चीजें मिला के एक अच्छे समाज को जन्म देती हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में गांधी जी के जो जितने भी प्रसंग हैं या जो प्रेरणादायक उनके वक्तव्य हैं, उनको हमारी फिल्मों पे डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं अभी भी गांधी जी के विषय में जो फिल्मों के माध्यम से समाज तक नहीं पहुंचे हैं। और उनके जो जितने भी शिक्षाएं हैं वो अगली जनरेशन को इसलिए पास करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे महात्मा जो होते हैं, गांधी जी जैसे महात्मा जो है युगों युगों में जन्म लेते हैं। ये रोज का किस्सा नहीं है कि ऐसे महात्मा इस विश्व में आए, इस भारतवर्ष में आए, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे युग में गांधी जी थे और हम उनको उनकी उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा ले सके। तो मुझे लगता है कि सिनेमा जो है इस वक्त जो माध्यम है वो समाज को, देश को और देशवासियों को संदेश देने का सबसे आसान और सरल तरीका है, और बहुत बड़ा मास मीडिया है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके। और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर टीपी अग्रवाल जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस पे भी थोड़ी रोशनी डालें कि किस तरह से हम गांधी जी के विचारों को अपनी फिल्मों में शामिल करके देश को और समाज को अच्छे अच्छे संदेश दे सकें। और मैं लोकेश जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा हाथ जोड़कर कि अगर वो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा सदैव च, ये सेकंड पोर्शन गांधी जी ने क्यों नहीं इंक्लूड किया, मुझे थोड़ा सा अचंभित करता है, या तो मेरा ज्ञान अधूरा है। अगर वो इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल सके। जी जरूर। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हिज होलीनेस आचार्य डॉक्टर लोकेश मनी जी, अगर प्लीज कुछ कहना चाहेंगे।
गजेंद्र सर, हम आपसे गजेंद्र चौहान सर, हम आपसे रिक्वेस्ट चाहेंगे तो प्लीज अलाउ अस फ्यू मिनट्स, हम उनसे डेफिनेटली कोई बात नहीं, प्लीज कनेक्ट करते हैं जरूर। बट थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने थॉट्स आगे रखे और हमें फिर से उसी सोच में डाल दिया। ऑफ कोर्स टेलीविजन और फिल्म वर्ल्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इतनी अहम हो गई है, और हम जो कुछ भी करते हैं सीखते हैं, डिजिटल वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी के सिवाय कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली आपका बिल्कुल प्रश्न जायज है और हम भी चाहेंगे कि हम भी इसके बारे में सीखें। बट थैंक यू सर, आपने उसी जुबान में जिस तरह आप महाभारत में एक्टिंग करते थे युधिष्ठिर की तरह, उसी जबान में आपने हमसे ये सवाल, हम सबसे ये सवाल किया है और हम सबको सीखने का मौका दिया है। तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं सर। हम हिज होलीनेस से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और उन्हें मैसेज भेजेंगे फोन पर। जी दोस्तों, जी दोस्तों, हमारे साथ मिस श्वेता शालिनी जी हैं। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो एक वेरी रिनाउंड आईटी प्रोफेशनल तो हैं ही, बट हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, एक एंटरप्रेन्योर हैं, स्पीकर हैं, ब्लॉगर, कॉलमनिस्ट और बहुत ही पैशनेट पॉलिटिशियन हैं, जो एक विलेज को ट्रांसफॉर्म करने में हमेशा बिलीव करती हैं, सीएसआर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं और चाहते हैं कि सभी उन्हें ज्वाइन करें टू मेक our beautiful country completely extraordinarily beautiful। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि श्वेता शालिनी जी, आप तो बिलोंग करती हैं टू द फैमिली ऑफ पॉलिटिशियंस, और आपने लगभग 9 स्कूल्स बदले हैं एंड कॉलेजेस में आप गए हैं। इतना एक्सपोजर, उसके अलावा आप जो आईटी का साथ लेती हैं और अपने हर कार्य में न्यू टेक्नोलॉजी एआई के बारे में भी बात करती हैं और इसे अडॉप्ट करती हैं, आई थिंक ये बहुत हम सबको इंस्पायर करता है। मे बी प्लीज रिक्वेस्ट आवर लवली लेडी मिस श्वेता शालिनी जी to kindly speak to all of us on this wondrous occasion to truly celebrate Mahatma Gandhi Jayanti, please. Thank you, Simran ji. I think I'm extremely honored to share the stage with so many renowned people, and that too on such an auspicious day. A small correction, Simran ji, yes, I've been an entrepreneur. I've been a serial entrepreneur. I started a couple of IT companies. लेकिन मैं एक political परिवार से बिल्कुल कतई नहीं हूँ। मेरे पिताजी एक फौजी थे और मैं एक सर्विस बैकग्राउंड से आती हूँ और बाकायदा बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, और ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ही ये सक्षम हो सकता है कि एक बहुत ही आम परिवार से आने वाली व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर आपके सम्मुख बैठी है और प्रस्तुत है। I would like to thank Akhil ji, who's a very, very dear friend and a brilliant human being, and the entire Bharat Icon family for this wonderful opportunity. I think it's very, very innovative, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं काफी अचंभित होने वाली चीजें सुनने वाली हूँ, देखने वाली हूँ। अभी मैंने देखा कि यक्ष ने प्रश्न पूछा था, आज तो बकायदा गजेंद्र जी ने ही प्रश्न पूछ लिया, और वो भी धर्म का प्रश्न पूछ लिया। तो आई थिंक वी आर री इन्वेंटिंग द व्हील हियर, और वो उसकी जरूरत भी बहुत है, क्योंकि बहुत हद तक आज हम कहीं ना कहीं गांधी जी को भूल गए हैं। और ये मैं क्यों कहती हूँ, वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आम मर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक महात्मा गांधी छुपे हैं, और जरूरत है कि उस महात्मा गांधी को अपने अंदर से निकालने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत पहले मैंने एक कोट पढ़ा था जो गांधी जी ने कहा था, और गांधी जी के बहुत सारे कोट्स बहुत फेमस हैं, लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट है, which said that freedom does not mean anything if it does not give you freedom to try and freedom to lose। और इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी में केवल मात्र एक्सपेरिमेंट्स ही किए। जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि my whole life is a message for the youth, और मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत पहले ये निश्चय किया कि यदि महात्मा गांधी को अपने अंदर जीवित रखना है तो उनके पदचिन्हों पर ही चलना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने उनकी जिंदगी जैसे एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया।
और मुझे याद है कि मैंने जब इंजीनियरिंग खत्म की और मैंने अपना MBA खत्म किया, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करती थी। 8 वर्ष काम करने के बाद मैंने ये निश्चय किया कि आई वॉन्ट टू बी एन एम्प्लॉयर एंड नॉट एन एम्प्लॉई, और इसीलिए मैंने अपना फर्स्ट स्टार्टअप की शुरुआत की। भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर। 3 लोगों से शुरू किया हुआ स्टार्टअप आज हम वर्ल्ड वाइड 3,500 लोग एक साथ काम करते हैं। सो आई थिंक द होल idea of experimenting with the truth, the whole idea of experimenting with your life, लेकिन अपने अंदर भगवान पे विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण अपने देश से प्यार, ये महात्मा गांधी के विचार थे। और इसीलिए जब हमें मौका मिला कि हम महाराष्ट्र के लिए कुछ कर सकें, तो जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तो एज वर्किंग इन द टीम ऑफ देवेंद्र फडणवीस जी, हमने 1000 गांव को दत्तक लिया और इन गांव में मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस के हैं उनके ऊपर काम शुरू किया। उनमें सबसे पहला गोल है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और यूनाइटेड नेशंस कहता है कि 2030 तक हम पॉवर्टी, गरीबी, और जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको उससे निकाल देंगे। इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2022 तक हर व्यक्ति के सर पर छत होनी चाहिए, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो। इसी तरीके से हमने न्यूट्रिशन, हेल्थ, जब ये SDG गोल्स हमने देखने शुरू किए, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस के गोल हैं, हमें समझ में आया कि ये ग्राम स्वराज्य की बात तो महात्मा गांधी इतने वर्षों पहले कह के चले गए, और उन्होंने केवल मात्र इतनी सी बात कही कि यदि आपको स्वराज्य प्राप्त करना है तो उस स्वराज्य को गांव से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब तक आपका गांव अपने सबल पे नहीं खड़ा होगा, तब तक आपका देश सबल से नहीं खड़ा हो सकता है। और इसीलिए मैंने अपना कार्य शुरू किया। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताने से शुरुआत करती हूँ। जब पहली बार मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से ये बात कही कि हम हर गांव में, जिस गांव को हम दत्तक लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वहां पर एक यंग लड़का जो कि गांधीयन फेलो की तरह वहां जाएगा, रहेगा, उसके मन में ये उत्तेजना रहेगी, ये आग रहेगा पेट में कि मुझे इस गांव में बदलाव लाना है, इस गांव को सब बल और स्वबल पे खड़ा रखना है, और तभी स्वराज का सपना सच हो सकता है। तो देवेंद्र जी ने मुझसे कहा कि पहले आप एक पायलट के स्वरूप 200 गांव उठाइए और 200 ऐसे बच्चे मेरे लिए ढूंढ के लाइए जो आपके इस सपने पर विश्वास रखते हैं। मैंने 200 गांव पूरे महाराष्ट्र में सेलेक्ट किए, और ये गांव ऐसे थे जिनका HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे कम था, और यहाँ पर ये अधिकतर ट्राइबल गांव थे। तो पालघर, गढ़चिरौली, गोंदिया, मेड़घाट, ऐसे अनेक गांव हमने लिए और लगभग 200-250 के साथ पायलट किया। और इनके लिए मैंने शुरुआत की कि मैं किसी तरीके से 200 ऐसे बच्चे ढूंढ पाऊं जो कि 20 साल से 26 साल के वर्ष के हैं और ये विश्वास करते हैं। मेरा एक टैगलाइन था वहां पर, जिसे हमने कहा, बी द चेंज यू वांट टू सी, और यही सपना गांधी जी का सपना था। यू हैव टू बी द चेंज मेकर। हम सब अपनी जिंदगी में चेंज चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चेंज हमारी जिंदगी में कोई और लाके दे। ये ही एग्जैक्ट यही स्वरूप हमने नरेंद्र मोदी में, यही जज्बा हमने नरेंद्र मोदी में देखा है। और मैं अक्सर युवाओं को कहती हूं कि इस देश का सबसे युवा व्यक्ति वो 70 वर्ष का युवा है, जो हमें ये बताता है कि नवरात्रों के में आप 9 दिन पानी के ऊपर उपवास रखकर भी यदि आपके मन में देश हित हो तो आप दिन रात 20 घंटे रोजाना काम कर सकते हैं। लेकिन ये विश्वास तब आता है जब आप दूसरों के लिए अपने जिंदगी को समर्पित करते हैं, और इसी समर्पण की भावना से मैंने चेंज मेकर्स की शुरुआत शुरू की। और
आपको जानकर ये अचंभा होगा, और अनेकों लोग जो आपको सुन रहे हैं और लाइव देखेंगे बाद में, उनको ये जानकर अचंभा होगा कि मैं 200 लोगों की खोज में गई थी। पहली बार जब मुझे एप्लीकेशंस आए तो 4000 बच्चों के एप्लीकेशंस आए। ये 4000 ऐसे बच्चे थे जो इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, एमबीएस थे, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते थे, लेकिन उनके मन में ये जज्बा था कि हाँ, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। और वो मुझे इंडिविजुअली चिट्ठी लिखते थे और कहते थे, हाँ, हमारे यहाँ मैंडेटरी था कि आप 18 महीने जाकर गांव में रहेंगे और अपने जीवन को समर्पित करेंगे इस सपने के लिए कि वो गांव तब बदलेगा जब आप उसमें कैटलिस्ट की तरफ बदलाव लाएंगे। और इन बच्चों ने कहा कि हाँ, हम सबैटिकल लेंगे, लेकिन अपने जीवन को समर्पित करेंगे। और आपको ये भी जानकर अचंभा होगा कि इसमें 30% महिलाएं, युवतियां आई। मैंने लगभग इस 200 गांव का सक्सेस रेशियो देखते हुए बहुत जल्दी देवेंद्र फडणवीस जी ने 200 को 1000 किया, और अब स्मार्ट प्रकल्प, बाला साहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्प में हम लगभग इस 200 को 10,000 गांव की तरफ बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में केवल 44,000 गांव हैं, पूरे देश में 6.5 लाख गांव हैं। लेकिन मैं अक्सर कहती हूं कि हम 135 करोड़ लोग हैं। यदि एक व्यक्ति ठान ले कि मैं अपने गांव में बदलाव लाके रखूंगा, तो केवल मात्र 6.5 लाख लोग लगेंगे और हमारा गांव बदल जाएगा। और इसी बदलते हुए गांव में के ऊपर कंधों पे खड़े होकर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इसीलिए केवल मात्र महात्मा गांधी के विचारों को समझना ही जरूरी नहीं है, महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं अपने अंदर जागृत करना बहुत जरूरी है, उनके पदचिन्हों पर चढ़ना बहुत जरूरी है। और अनेक लोग इस देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में आकर उनके नेतृत्व के अंदर निरंतर इस रास्ते पर चल रहे हैं। हमें आज ये पूछना है कि क्या आप उनमें से एक हैं। और आज मैं इसी प्रश्न के साथ आप लोगों से विदा लूंगी कि कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि यदि मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे जीवन में कोई और बदलाव लाएगा, तो वो बदलाव कभी नहीं आएगा। क्योंकि जब हम ये एक उंगली दूसरे पे के ओर पॉइंट करते हैं, तो ये जो 4 उंगलियां हैं, ये हमारे ओर पॉइंट करके, इशारा करके हमें याद दिलाती है कि बदलाव सबसे पहले मुझसे शुरू होता है। इसलिए अपने अंदर महात्मा गांधी को जगाइए, और जब ये महात्मा गांधी जगेंगे, तब आपके अंदर का नेतृत्व जगेगा, तब आपके अंदर का बदलाव जगेगा। और यही असली ट्रिब्यूट है महात्मा गांधी को। केवल मात्र इन शब्दों से अंत करना चाहूंगी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, पर सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। और ये सतपथ की ओर बहुत सारे युवा चल रहे हैं। जरूरत है कि हम उनका साथ दें, या तो उनके साथ चले या उनके पीछे चले, लेकिन चले, क्योंकि जब आप चलेंगे तो देश आगे की ओर चलेगा। ब्यूटीफुल। मुझे आपने बुलाया अखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for giving us this platform and giving me this platform especially to ensure that the right message comes across to people. Thank you so much for all the learning for today. बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता शालिनी जी, यू आर लिविंग एवरीथिंग मेंशन्ड बाय महात्मा गांधी जी। एंड आज बड़ा अच्छा लगा, आपने जिस तरह से वो पॉसिबल कर दिखाया, जो कार्य ऑफ 200 विलेजेस, वहां से लेकर आज 1000 विलेजेस तक हम पहुंच गए हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू। एंड ट्रूली कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली यू आर द ट्रू हीरोज डॉटर। और मैं कहना चाहूंगी कि यस, योर हस्बैंड इज कनेक्टेड टू RSS, so that's how I said you belong to the family. But मैं कहना चाहूंगी that you being such an inspiration, आज आपका हर एक शब्द सुनकर यही लगा कि instead of और किसी को कहने से पहले यार हम खुद क्यों ना वो छोटा सा भी बदलाव लाएं, क्योंकि गांधी जी कहते थे छोटे से बदलाव की, बस वो छोटे से बदलाव की कोशिश की हमें देरी है। अगर वो हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज
इतने हम शुक्रगुजार हैं कि हमें आपको सुनने का मौका मिला, श्वेता शालिनी जी, और इस अवतार में हमने आपको पहली बार देखा है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द रियल फोर्स, द रियल इंस्पिरेशन, और जिस तरह से आप अपनी एजुकेशन भी आगे बढ़ा रही हैं पॉलिटिक्स में, और ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स का तो वहां पे नामो निशान नहीं, आपके सिर्फ अच्छे कार्य ही दिख रहे हैं। तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता शालिनी जी। दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारे वेरी रिनाउंड इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर श्री टीपी अग्रवाल जी। जी हाँ, इनकी फिल्मों के बारे में मैं क्या कहूँ, वेरी वेरी रिनाउंड, और इतनी सुपरहिट फिल्में थी, हमारी लाडली की शादी हो या मैं लड्डू दीवाना या पुलिस गिरी। फिल्मों के दौरान किस तरह से वो मैसेज देते थे हर उस घर में, और किस तरह हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। Please welcome the president of IMPA, the Indian Motion Pictures Producers Association, Shri T.P. Agarwal ji. तहे दिल से आपका स्वागत है सर। Indeed, can we take, like Agarwal will be back soon. Can we take Binny Sareen? Sure, नम्रता, बिल्कुल हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। सॉरी टू आवर राजयोगिनी डॉक्टर बिनी सरीन जी, सॉरी मैंने आपको देखा, अब देखा, पर पहले हम ऑलरेडी आपका नाम ले चुके थे। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, हमारे जो फाउंडर हैं ऑफ दिस ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर पीस, वेलबींग, एंड हमारी पीस एम्बेसडर है, हमारी डॉक्टरेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। जी हाँ, खुद इतने ब्यूटीफुल वैल्यूज हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि शी हरसेल्फ इज एनलाइटेंड और डेडिकेटेड, हमारी स्पिरिचुअल लीडर है, और स्पीकर है, ऑथर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। हम तहे दिल से अब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे हमारी राजयोगिनी डॉक्टर बिनी सरीन जी से। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा आपसे जुड़ने में लेट हो गए। सबसे पहले मैं आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आज का बहुत स्पेशल दिन है, और आज का ऐसा दिन है जो अपने आप को एम्पावर करने का दिन है। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, कर दिया कमाल। ऐसा क्या कमाल महात्मा गांधी ने किया, जिन्होंने एक हिस्ट्री बना दी। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रेरणा दी, एक मैसेज दिया। उनकी जीवन एक अपने अंदर बहुत अद्भुत कहानी है। उन्होंने अपने बुक के अंदर एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने बताई हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन से मैं महात्मा गांधी जी से बहुत बहुत प्रभावित रही हूँ, और मैंने अपने डॉक्टरेट पीएचडी में बहुत सारी उनकी टीचिंग्स को, उनके संदेशों को मैंने लिंक किया है और उसमें उसको रेफरेंस के रूप में लिया है। कुछ एक ऐसी बातें जो उनके जीवन में बहुत अद्भुत थी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सैल्यूट महात्मा गांधी टुडे। लेट अस ऑल ऑफ अस सैल्यूट। हम उन्हें अपने दिल से हम्बल ग्रेटिट्यूड दें, उन्हें नमस्कार करें कि एक ऐसा दिन जो कि आज की वर्तमान हमारी पीढ़ी को, हमारी जनरेशन को एक मैसेज देने वाला एक विशेष दिन है। उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें रही। आज बहुत सारी बातें हमारे स्पीकर्स ने मेंशन की होगी, लेकिन मैं 5 ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी। उनके ऐसे सिद्धांत, उनकी ऐसी टीचिंग्स जिन्होंने वर्ल्ड को एक, न केवल भारत को लेकिन वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। सबसे बड़ी बात जो है वो नॉन वायलेंस, लेकिन मैं यहाँ पर एक उस अहिंसा की भी बात कर रही हूँ जो कि कभी कभी हम देखते हैं कि बाहर से हिंसा नहीं नजर आती है, लेकिन मन से, वचन से और कर्म से, अगर मन से भी हम किसी को दुख देते हैं तो वो भी एक हिंसा का रूप है। तो नॉन वायलेंस का इतना सटल फॉर्म कि हम मन में भी सबके प्रति शुभकामना रखें,
शब्दों में तो बाहर के रूप में दिखाई दे देता है। जब हम किसी को ऐसे शब्द बोलते हैं या कोई हमें ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन मन के अंदर भी एक ऐसा सटल लेयर ऑफ नॉन वायलेंस जो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने जो फ्रीडम ली, वो एक अपने अंदर बहुत बड़ा अनोखा उदाहरण है। साथ ही साथ अगर हम ले सत्यता, सत्यता और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन अ वेरी वंडरफुल वे, दिस इज द मैसेज जो उन्होंने अपनी बुक एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं कि वो अपने जीवन में कैसे सत्यता को इतना ज्यादा महत्व देते थे। उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी में अगर हम देखें तो उसमें दो बातें और जुटी हैं, सत्य के साथ में सादगी, सरलता। उनका जीवन आप देखिए कि चरखा और खादी जो आज की जनरेशन को उस भारत की तस्वीर दिखाता है कि उस समय कितनी सादगी और सत्यता से उन्होंने अपने जीवन के अंदर वो सब मूल्यों को, क्योंकि वो उनके पूरा जीवन ही मैसेज था। उन्होंने खुद भी लिखा है कि उनकी लाइफ ही जो है वर्ल्ड के लिए एक मैसेज है। तो वो मैसेज जो उन्होंने वर्ल्ड को दिया, वो सरलता, सादगी, सत्यता, बहुत सरल भी थे। उनके जीवन की सादगी, उनका पूरा आप देखिए कि जो खादी के प्रति जो उनका कनेक्शन था, यानी कि खादी और उनके नॉन वायलेंस ने इस कदर की सादगी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उस समय ये उनकी ऐसी बड़ी शक्ति के रूप में, हथियार के रूप में सामने आई। और साथ ही साथ जो मैं पांचवी बात शेयर करना चाहती हूँ वो है उनके जीवन की नैतिकता, नैतिक मूल्य, चाहे शांति। शांति के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। शांति, पीस इज इनसाइड। लोग उसको बाहर ढूंढते हैं, लेकिन जो शांति है वो भीतर की शक्ति है। वो ऐसी चाह है जिसे हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भीतर की एक ऐसी शक्ति है। कहते हैं कि शांति की वो राह और चाह है कि जहां ढूंढता उसको बाहर है, लेकिन शांति भीतर की मुस्कान है। वो एक ऐसी बड़ी, बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए जो उनके जीवन की जो नैतिकता जिसको कहें, चाहे हम उसको शांति ले ले, चाहे ले, और एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में आजकल जहां सिद्धांत बदलते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ सेल्फिश बातें जब उसमें आ जाती हैं, शॉर्टकट बातें आ जाती है, जो बहुत कम समय में लोग सक्सेस, वेल्थ, सब कुछ गेन करना चाहते हैं, उस समय मूल्य और सिद्धांतों को कभी कभी मानव एक तरफ रख देता है। तो ऐसे में आज का दिन मैं यही चाहूंगी कि हमारे आज के सोसाइटी को, अपने देश को, अपने युवाओं को खासकर, मैं समझती हूँ कि आज का दिन एक फिर से दृढ़ संकल्प लेने का दिन है कि ऐसे आदर्श महापुरुष से हम अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे सिद्धांतों को अपनाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी माउंट आबू से मैं आप सभी को ग्रीटिंग्स देते हुए ये कहना चाहूंगी कि हम हमारे विद्यालय में हम महात्मा गांधी की टीचिंग्स को, उनके लाइफ को बहुत आदर्श के रूप में उसको हम समझते हुए चलते हैं। ऑफ कोर्स हमारे फाउंडर ने बहुत बार उनका जिक्र किया है उनके अपने डिस्कोर्सेस में। तो इसीलिए ये हमारे जीवन में बहुत सारी वैल्यूज को, नैतिकता एक बहुत बड़ा, एक हम अगर देखें तो अपने अंदर एक एक मूल्य, चाहे वो शांति है, चाहे वो प्रेम है, दृढ़ता, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात जो दांडी मार्च में भी हम अगर देखते हैं कि कैसे उन्होंने पूरा जिसको कहते हैं कि पूरा एक कारवा बन गया उनके पीछे पीछे, इतनी बड़ी उनके जीवन के अंदर दृढ़ता थी कि उस पे वो दृढ़ रहे।
और उससे उन्होंने सक्सेस प्राप्त की। ये बहुत बड़ी बात थी कि हम जब अपने जीवन के अंदर ये ठान लेते हैं कि हमको अपने आदर्शों और सिद्धांतों से अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो वो हमें मिलता जरूर है। हो सकता है हमें धैर्यता रखनी होती है, कभी कभी बहुत समय भी लग जाता है, लेकिन उसका परिणाम जो है वो बहुत बहुत हम कहें कि दूरगामी और श्रेष्ठ होता है। जो आज के समय में मेरा अभी ही कुछ दिन लास्ट मंथ एक वेबिनार रहा जिसका टॉपिक था महात्मा गांधी इन न्यू एरा। ये मुझे विषय दिया गया था जिसमें कि विशेष रूप से ये वो संगठन ने आयोजित किया था जिन्होंने 1932 के अंदर महात्मा गांधी जी के साथ जो है हरिजन सेवा जो समिति संघ था, उनके प्रेसिडेंट ने मुझे इनवाइट किया था। तो हम यही बात कर रहे थे कि न्यू एरा, कुछ लोग समझते ये तो सब पहले की बातें हैं, वो आज के समय में कैसे पॉसिबल हो सकती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो महात्मा गांधी का जीवन, उनके सिद्धांत, उनके जीवन की वो दृढ़ता, जो उन्होंने ठान लिया उन्होंने करके दिखाया, वो आज के समय में भी उसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। इट इज द नीड ऑफ द आवर दैट टुडे वी शुड imbibe in our life the character, the strength, non-violence and humility and also so much power of silence। इसीलिए मैं जब ये वाइंडिंग अप करूंगी तो मैं थोड़ा सा आपको मेडिटेशन का 2-3 मिनट एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ महात्मा गांधी जी के बहुत फेमस भजन की ट्यून के साथ, वैष्णो भजन। तो आप देखिए कि दो बातें जो उनके जीवन की हमें बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस का जीवन चल रहा है। पीपल दे डोंट हैव टाइम, पीपल फील दैट एवरीथिंग शुड हैपन इन फास्ट स्पीड। ऐसा टाइम है तो लोग साइलेंस में नहीं रह पाते हैं, बहुत मुश्किल है। महात्मा गांधी के जीवन से ये हमें टीचिंग्स मिलती हैं जो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक तो मौन और एक साइलेंस। वो कितना मौन व्रत भी रखते थे, दोनों बातें थी, व्रत और मौन, ये दोनों का बहुत बड़ा कनेक्शन है जो इन साइलेंस है, जिसको चाहे हम मेडिटेशन कहें, चाहे हम इनर जर्नी कहें, चाहे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहें, उन सब का कनेक्शन जो है आज के समय में silence is very very important because we are facing a challenging times of virus. People are just feeling very low esteem time to time, so there is a need to strengthen our mind. So how can we strengthen our mind? A very very important thing is A means awareness of the power of silence, that I need to spare. It is not I can say that कैजुअल वे में ले ले, बट इट इज रिक्वायर्ड टू बी ऑप्शनल। हम इसको कंपल्सरी कर ले, लोग इसको ऑप्शनल लेके चलते हैं, लेकिन कंपल्सरी की बात कर रही हूँ कि हमें सुबह कुछ क्षणों के लिए मिनिमम 5 to 10 मिनट्स अपनी दिन की शुरुआत साइलेंस, मौन और पॉजिटिविटी से करनी चाहिए। मैंने बहुत बचपन से मेडिटेशन करना शुरू किया। When I was 6 years old, every day I feel that meditation is a new journey. So let us, few seconds, I request you, let us celebrate today's Mahatma Gandhi Jayanti with the real experience of silence. Let us give our total respect, our gratitude for a great leader, father of nation, with the feeling that let us take a pledge. Today we should have a strong determination. Yes, we should be non-violent. Don't give sorrow and pain from our minds also. Let us be very simple in our thoughts. Let us be true to ourselves. Let us recognize who am I, a pure being, a peaceful being. So please join with me. I'm सॉरी डॉक्टर बिनी सरीन, आपसे क्षमा मांगना चाहूंगी क्योंकि यू नो वी वर अलॉटेड ओनली 10 मिनट्स फॉर स्पीकर। हमारे स्पीकर हुए, लेकिन आपने जो मैं कही
silence Just or 3 seconds. which works wonders because our हाँ, speakers are just only other towards the end if we can do. only 1 second. Okay. So I Sure, will sure, just sure. want to Please, if you can say- conclude it, please. Shama chaungi, I will ask you for I forgiveness, will, please. just request you the winding up with the Sure. silence. Sure. Just relax your mind. Be silent inside. Feel the energy, soul energy, true energy, powerful energy. Look within and connect with your real energy. Just have a positive thought and vibration. My true nature is peace. I love peace. I like peace. I donate peace. I respect peace. I respect non-violence. I respect truth. I respect simplicity. I respect values. Om Shanti. 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 Thank you very much. Om The Shanti. organizers, Brother Brunsel and Madam, organizing a session on such a wonderful subject. Thank you so much. I'm going to request you, Dr. Vinny Sareen, that we would love to definitely learn this and get that beautiful feeling, as you mentioned, fasting and silence, Maun Vrat or fasting. हम ये दोनों चीजें आपसे सीखना चाहेंगे, and we'll definitely request Akhil Bansal sir to please have a special session. And we're truly humbled and honored by all your valuable teachings that you've given us today. तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Ladies and gentlemen, may we please now welcome our former Director General NYKS, who's done commendable work as a member of Consultative Committee for New Educational Policy Excellence in Adventure, चाहे वो खेलो इंडिया प्रोग्राम हो या यूथ कमिटी के लिए और यूथ डेवलपमेंट के लिए कुछ करना हो, वो है हमारे Major General Dilawar Singh ji. Sir, truly an honor to have your humble presence. Jai Hind to you, Major General Dilawar Singh ji. May we please humbly request our Major General Dilawar Singh. Thank you, sir. Thank you, Simran. Thank you so much. And on the outset, let me thank Shri Akhil Bansal ji, the founder of the Bharat Icon family. Great event on a great day. I will not get into the formality of addressing the other people who might have left already. And I'm really grateful to Simran that Simran has kept me towards the end, because the patience of the army people is huge, and so you can no, I'm very happy. You see, you're trusting me. There's no problem. Just to inform you, I am a 4th generation soldier. My father, my grandfather, and my great grandfather was also in the uniformed service. And also to inform some of our viewers that I also have a kind of I can't call it a record, but statistics that I have neutralized the largest number of terrorists in the world. And the third thing which I want to tell you is that I have trained more than 90 lakh youth. That is my effort towards nation building. Wow. Right. We are proud of you, sir, and your entire family. Thank you. Are true heroes of our family. Thank you, sir. We are honored and privileged to be invited by you for celebrating the birth anniversary of 2 of our most respected national icons. People have spoken about Mahatma Gandhi ji, but we often tend to forget about our equally important icon, Lal Bahadur Shastri ji. As far as the Mahatma is concerned, he created a lasting influence not only among the Indians, but also amongst the British.
as well as the entire world. And for some of our viewers, I'm addressing the viewers because all other our panelists must have already left. This day and his philosophy of peaceful coexistence, that is Ahimsa, Satyagraha and Swachhata, are celebrated by large number of governments and large number of countries across the world today. In fact, his statues, libraries only dedicated to him, and his teachings are found in more than 100 countries today. In fact, you will also be aware that the United Nations, the government of America, South Africa, UK, Korea, Japan, Malaysia, everybody is celebrating the life and times of Mahatma Gandhi ji. He is not amongst us today, but his legacy of more than 150 years continues to influence us. If one has to find and create meaning of life, it is not possible without peace. And the foundation for this lies in Ahimsa. And the ills, if we want to root out from our life, then they can come only through Satyagraha. And the cleansing of the mind, body and environment is only possible through Swachhata. So to sum up the entire philosophy of life, if we focus on only these three words, that is Ahimsa, Satyagraha and Swachhata, I think that would create a lot of value to life. And large number of these aspects of these sustainable development goals, which one of our sisters was speaking earlier, they are influenced by these three principal aspects. Acharya ji is left. A question of Gajendra Chauhan is waiting to be answered, and I will now answer that question. I will now answer that question by giving you an anecdote from my life, my own life as such. It was my first encounter with the terrorists. Although I had been one of the best shooters, but my bullets were landing on the left and right of the terrorists. अच्छा सुनो, इससे आवाज चला जाएगा. And one of my officers, he asked me, sir, why are your bullets landing on the left and right? Why are you not hitting the terrorists? And that is the time I told him, I am looking at you. If even the host starts doing this, it is an insult, and please don't do that. When the bullets were landing left and right, and my officer asked me why they are landing left and right, I told him that, look, I am a human being. This gentleman is also a human being. Do I have the right to take away his life? And now to complete the question of Gajendra ji, my subordinate was a very, very intelligent person. Most of our army officers are very intelligent, although they are not seen that way by many people. He says, sir, I'm going to ask you 3 questions. And the 3 questions you don't have to answer to me, you have to answer to your own self. And then you have to decide what you want to do. The first question was, sir, today you are in a position where you are in a dominating position and your bullets can land up on this terrorist. You are thinking of being peaceful. You are thinking of ahimsa. But if he had a similar opportunity, will he think of ahimsa? I said, certainly no. He will not think of ahimsa. The second question was, how many innocent civilians this terrorist has already killed or got killed? Obviously, the answer was large number of them. And the third question was that in case he escapes today, how many more people will be killed? Obviously, the answer was many more.
And therefore, it was very easy and simple for me to decide thereafter that I should not leave him and immediately do the needful as the dharma required. And we killed those terrorists, and thereafter there was never a confusion in the mind as to what is to be done. Whether ahimsa is paramo dharma or dharma is to be protected. As far as Shastriji is concerned, we are celebrating his life also today. He is known as a people's prime minister. His simplicity, his morality, his austerity, his leadership and patriotism is known world over. In fact, his total belongings were 3 pairs of clothes, 1 old car, and very small amount of money that he had. Such have been our great leaders, both of them, both Mahatma Ji and Shastri Ji. I actually want to cut down on my time, and therefore I'll close by saying that I started a program known as Nation First Character Must long time ago. It has reached across to the entire country and to other countries also. It is called Nation First Character Must. Nation First Character Must. And large number of youth are connected to it. And for those viewers who might be interested, we will be conducting a youth program very shortly. We hope to be able to connect to more than 1 lakh young people very shortly. And this is aimed at how do we create better India, especially after this kind of COVID situation is emerged. My best wishes to each one of you. And one question which Acharya Lokesh Ji had left, that he has not heard of any peace training. So I must tell you that the army not only conducts training for peace, it also conducts training for, not only conducts training for combat, it conducts training for peace, it conducts training for conflict avoidance as well as conflict mitigation. So wish you all the best. Thank you so much. Akhil Bansal Ji and Simran Ji, before I conclude, let me say Jai Hind and Jai Bharat, and God bless you. Jai Hind, sir, but I must definitely say this at first. You said nation first, character must, and the fact that you've already done everything with so many youngsters of the country and of the world, I must definitely salute to you. And it's been generations, being our true heroes. And I must definitely congratulate you and thank you for telling us about the youth program for a better India and for actually answering the questions, jin sabke jawab, हम सब तो सोच में पड़ गए. तो बहुत इतनी आसानी से आपने अपने एक्सपीरियंस से जब आपने जो एक्सपीरियंस आपका बताया, गजेंद्र सिंह चौहान जी का भी जवाब दे दिया और ऑफ कोर्स हिज होलीनेस आचार्य सर का भी जवाब दे दिया. एंड आई मस्ट डेफिनेटली से सर, यू लिव बाय एग्जांपल and a true example, who's waiting for so long just to answer all our questions. We couldn't be more humble than this. Our humble thanks to you, sir. And I'm sorry, I just took the phone because we coordinate on the phone for our Swami Ji, if he's come on, so we were coordinating, sir. I sincerely apologize in case I hurt your feelings. I sincerely apologize with holy hands. Thank you very much. My dear lovely friends, it's time for us to welcome Swami Chakrapani Maharaj Ji, our National President of Sant Mahasabha and the National President Akhil Bharat Hindu Mahasabha. जी हाँ, जो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के अपील करता है, आज हमारे साथ हैं और जो पधारे हैं हमें दर्शन देने के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी. सर, तहे दिल से हम आपका स्वागत करना चाहेंगे और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे 2 शब्द फरमाइए प्लीज. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारत आइकन फैमिली के द्वारा आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इस वर्चुअल एक मीटिंग रखा गया है और इसके माध्यम से देखिए हमारे देश में चित्र की पूजा नहीं हुआ करती, हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है. भगवान राम की पूजा हम जो करते हैं तो भगवान राम
कोई चित्र नहीं है, एक चरित्र है। उसी प्रकार से किसी भी महापुरुष का हम अगर जो स्मरण करते हैं, हम उसकी दिवस मनाते हैं, तो उस दिवस मनाने के पीछे मात्र उसका चित्र नहीं बल्कि चरित्र हुआ करता है। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा है, हमारी सनातन संस्कृति ऐसा है जहां चरित्र को विशेष महत्ता दी गई है। आज इसी उपलक्ष्य में आप देखो, आज 2 महापुरुषों का जयंती है। एक लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने एक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की, और जब देश में संकट आया तो उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा लगाया। पूरा हमारा जो देश है ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है, और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने का काम किया यहाँ के ऋषियों ने और यहाँ के किसानों ने। आज उसी उपलक्ष्य में, आज वर्तमान परिस्थितियों में जिस समय पूरा विश्व जो है कोरोना की महामारी से गुजर रहा है, आज इन महापुरुषों को याद करना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री शुरू से ही उन्होंने जिस प्रकार से देशीकरण को महत्ता दिया था, और अपने उसी प्रकार से महात्मा गांधी जी ने भी, और उनका जो स्वप्न था वो कहा करते थे कि देश आजाद जब होगा तो सबसे पहले 3 उनके स्वप्न थे जो उन्होंने अपने पेपर में उन्होंने संपादकीय में लिखा था कि पहला, हिंदी को राष्ट्रभाषा हम बनाएंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में विशेष उनका महत्व था। और दूसरा ये था कि देश का स्वदेशीकरण करना, और देश को पूरी तरह स्वदेशी करने का उनका वो था। और तीसरी जो उनका जो था कि गौ को राष्ट्रीय उसके लिए कानून बनाने की बात, जो अहिंसा के मार्ग, देखो अहिंसा के रास्ते पे जो चलता है वो कोई अहिंसा कोई कायरता की भाषा नहीं बल्कि वीरता की भाषा होती है, क्योंकि वीर ही व्यक्ति अहिंसा के मार्ग को अपना सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात और जरूर जोड़ना चाहूंगा। काफी समय से चर्चा होती है कि गांधी को गोडसे ने मार दिया गांधी जी को। मैं इस बात को, देखिए 2 बातें हैं। हमने जैसे पहले ही बताया कि हमारे यहाँ चित्र की नहीं चरित्र की पूजा हुआ करती है। हम कहीं ना कहीं वो लोग भी दोषी हैं जिन्होंने हिंदी को महत्ता नहीं दिया, क्योंकि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा हमारी है तो हर जगह हिंदी का प्रयोग पूरी तरह क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात ये है देशीकरण। आज देश के प्रधानमंत्री जी भी वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, यानी कि वोकल फॉर लोकल क्या है, वही है जो गांधी जी कहा करते थे, जो देशीकरण की बातें करते थे। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल बनो। अगर आजादी के तुरंत बाद हम वोकल फॉर लोकल हो गए होते और देशीकरण को अपनाए होते तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। हमारा देश निश्चित रूप से 70 सालों में बहुत आगे बढ़ा होता। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अगर जो किसी को माने, क्योंकि गांधी जी हमेशा शरीर के स्तर पे नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पे चलने का काम करते थे। अगर हम देशीकरण को अपनाएं, हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेजी मत बोलो, जरूर बोलो, कोई विदेश, हर भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि हम अपने भाषा का, हम अपने संस्कृति का, हम अपने चीजों का जो हम जितना हो सके उसको बनाए रखें, हम उसको प्रमोट करें। विश्व में अगर जो हमारा प्रमोट होता है, देखो अभी भी सिद्ध हो चुका है कि अंग्रेजी से सबसे अच्छा संस्कृत के जो व्याकरण है वो कंप्यूटर पे सबसे ज्यादा सही आता है। तो इसलिए अगर हम हिंदी को, हम अगर स्वदेशी को, अगर जो वोकल फॉर लोकल अगर हम हुए होते आजादी के तुरंत बाद, जो गांधी जी का मूल स्वप्न था, मूल सिद्धांत था, तो निश्चित रूप से उसको हम हमारा देश आज बहुत आगे बढ़ा होता। और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जीव जंतु सबके उन्होंने बकरी पालने का काम जैसे अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उन्होंने जिस प्रकार से उतारा वो कमाल का है। जिस प्रकार बिहार की गरीबी को देख के उन्होंने वस्त्र का परित्याग कर दिया, तो ये बहुत जरूरी है। आज ऐसा नहीं होता, आज एक कहीं कुछ ऐसी चीजें होता है, लोग जाते हैं और जा करके देखते हैं, फिर वो भूल जाते हैं आने के बाद, और क्षणिक रूप से वैराग्य होता है, कुछ देर के लिए देखते हैं वैराग्य होता है, लेकिन उसको जीवन में एक संकल्प रूप से नहीं बांधते। तो संकल्प का अगर कोई नाम है तो गांधी है, क्योंकि संकल्प लेकर के, गरीबी देख करके उन्होंने संकल्प किया, वस्त्र का परित्याग कर दिया। जो व्यक्ति विदेश में पढ़ा लिखा हो और देश में आता हो और देश की गरीबी की स्थिति को देखता हो कि हम तो इतने सूट बूट पहन रहे हैं और गरीब, और ऐसे हमारे देश में लोग हैं जिनको खाने को अन्न नहीं मिलता और वस्त्र तक को नहीं मिलता, उन्होंने देख करके वस्त्र का परित्याग किया और एक साधारण जीवन के रूप में रहे। वो उन्होंने सत्ता को, आप देखिए कि उन्होंने सत्ता तो हुई, लेकिन सत्ता से दूर रह करके और सत्ता को उन्होंने समाज सेवा की तरफ प्रेरित किया। और यही लाल बहादुर शास्त्री
सत्ता में रह करके, और सत्ता में वो डूबे नहीं, सत्ता के अहंकार में कभी नहीं रहे। उन्होंने ईमानदारी की इतनी पराकाष्ठा की, जब वो विचार नहीं रहे उसके बाद भी उनको, उनकी जो एम्बेसडर थी वो भी लोन पे थी, वो भी कर्ज में थी। आप देखो ये कितनी बड़ी चरित्र है। मैं तो कहता हूँ आज के रूप में कि हर ऑफिसों में अगर महात्मा गांधी की, हर ऑफिसों में अगर लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर लगाई जाए, और सिर्फ तस्वीर नहीं, उसके साथ उनके चरित्रों को बताया जाए कि लाल बहादुर शास्त्री कौन है, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए इन्होंने अपनी राष्ट्र की सेवा की, और अंत में रिटायर होने के बाद आप ये देखो, जब रिटायर बने यानी कि जब नहीं रहे, तो उसके बावजूद उनके कोई संपत्ति नहीं था। ईमानदारी की एक प्रकाष्ठा थी उनकी। इसी प्रकार से जो गांधी जी है उनका भी यही था। देखो विदुर जी महाराज से एक जिज्ञासु प्रश्न करता है, हम एक दृष्टांत बता रहे हैं। विदुर जी महाराज से एक जिज्ञासु प्रश्न करता है कि महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है। विदुर जी महाराज उसको उत्तर देते हैं, जीवन का उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। विदुर जी जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि स्वर्ग और मोक्ष कैसे मिलता है। तो विदुर जी महाराज उसको उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति जीवन भर परमात्मा का नाम लेता है उसको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि मान लो कोई जीवन भर किसी कारण से भगवान का नाम न लिया हो, और तो कैसे परमात्मा मिलेगा। तो विदुर जी महाराज उसको बताते हैं, जो व्यक्ति जीवन भर किसी कारण से मान लो परमात्मा का नहीं नाम लिया, तो जो सदा आचरण रहते हुए, सदा आचरण करते हुए और गरीब असहाय दीन दुखियों की सेवा करे जीवन भर, तो मरने के बाद उसे भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, जो व्यक्ति किसी मान लो कोई ऐसे कारण हो कि भगवान का भी नाम न ले और सेवा भी जीवन भर न कर पाया हो, तो वो स्वर्ग और मोक्ष में प्राप्त कैसे करेगा। तो विदुर जी महाराज उसको उत्तर देते, वो एक और भी है तरीका। वो क्या तरीका है, जो व्यक्ति मान लो भगवान का नाम नहीं ले पाया, जो व्यक्ति जीवन भर गरीब असहायों की भी किसी कारण से सेवा नहीं कर पाया, लेकिन एक और है तरीका कि जहां पे उसका जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि पे जन्म हुआ है, कभी उस मातृभूमि पे संकट आ जाए, उस संकट को काटने के लिए, उस संकट को, पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी लड़ते लड़ते उस पीड़ा से अपनी जो जान की आहुति दे देता है, तो मरने के बाद उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन महापुरुषों ने क्या किया, इन्होंने तो परमात्मा का भी नाम लिया। विदुर जी महाराज से जिज्ञासु कहा कि जो तीनों करता है वो क्या, तो विदुर जी महाराज कहते हैं, जो तीनों करते हैं वो तो जहां भी रहते उसको स्वर्ग बनाने का काम करते हैं। आप जरा देखो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो या महात्मा गांधी, उन्होंने क्या किया। महात्मा गांधी रोज प्रार्थना करना नहीं भूलते थे, लाल बहादुर शास्त्री पूरी तरह धर्मनिष्ठ थे, तो इन्होंने धर्म का भी, भगवान परमात्मा का भी नाम लिया। इन्होंने क्या किया, गरीब असहाय राष्ट्र के जनों का सेवा करने का काम किया, और दूसरी इस मातृभूमि के लिए भी अपनी सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया। आज बहुत हमें खुशी और प्रसन्नता हो रही है, दोनों महापुरुषों की जो जयंती हम मना रहे हैं, और आपके माध्यम से भारत आइकन फैमिली के माध्यम से हम बधाई देना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी का। रेखा गुप्ता जी जो बड़ी विदुषी है और बहुत ही अच्छी खुद विदुषी महिला है, बहुत हर विषय में बहुत अच्छी अच्छी राष्ट्रभक्ति वाली कविता आज भी उन्होंने कई सुनाया। और सिमरन जी, सबसे पहले मैंने आपका दर्शन वहीं पे किया था, और मैंने उनसे कहा भी था कि बहुत अच्छा, उन्होंने काफी आपने अच्छी एंकरिंग वहां पे की थी, और आप बोलने के बहुत अच्छे तरीके थे, हमें अच्छा लगा था। तो रेखा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आज करीबन कई बार फोन उन्होंने किया, अभी भी कई बार किया, स्वामी जी जल्दी आइए जल्दी आइए। मैंने कहा जरूर मैं आ रहा हूँ। तो किसी बच्चे से, क्योंकि हमें लगाने नहीं आता, तो मैंने किसी तरह करवाया है। तो हम निश्चित रूप से आप सबको बहुत धन्यवाद देंगे, अखिल बंसल जी को भी बहुत बहुत, और आचार्य लोकेश मुनि जी जो हमारे मित्र भी हैं उनको भी हम नमो नारायण कर रहे हैं, हरिओम बोल रहे हैं। फिर श्वेता सालनी जी हैं, और टीपी अग्रवाल जी, मेजर जनरल दिलावर सिंह जी जो बहुत अच्छी बात अभी बोल रहे थे, गजेंद्र चौहान जी, उनका भी बहुत बहुत हम अभिवादन करते हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति है। शर्मिला ओसवाल जी और राजयोगिनी डॉक्टर बीना सरीन जी, इनको बधाई देता हूं। और आपको विशेष रूप से जो आप इतनी अच्छी एंकरिंग कर रही है सिमरन जी, परमात्मा आपको बहुत आगे बढ़ाए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और रेखा जी तो है ही है, रेखा जी को भी बहुत बहुत आज बधाई देता हूं कि इस अवसर पे आप सबसे हमें मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। हम चाहेंगे कि पूरे देश के लोग आज शास्त्री जी और गांधी जी से प्रेरणा लेकर के
अपने जीवन को सादगीपूर्ण बनाएं और राष्ट्र की सेवा में, जन की सेवा में अपने आप को न्यौछावर करें, तो निश्चित रूप से आज की जयंती, आज का कार्यक्रम हमारा सफल होगा। शुक्रिया बहुत सर। धन्यवाद। हरिओम। स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और हमारे जो स्पीकर्स थे, लास्ट के स्पीकर्स, मेजर जनरल दिलावर सिंह जी, आई रिमेम्बर एवरी सिंगल वर्ड ऑफ योर्स, और हमारे साथ, हम सब के साथ हमेशा रहेगा। आज इस शुभ दिवस पर मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर Bharat Icon family and our chairman and managing director Mr. Akhil Bansal ji. Our humble thanks to you. जय हिंद। और यही कहना चाहूंगी सबसे एंड में कि जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि चरित्र की पूजा होती है, so let us try and be the best version of ourselves. Take care. God bless. Major General Dilawar Singh ji, can I please apologize to you once again? क्योंकि हर सेकंड की कीमत आपसे ज्यादा कौन जानता है सर? The one who really tries and plays with a gun. No one can know millisecond की जो अहमियत होती है आपसे ज्यादा. So I sincerely ask you for forgiveness in case you felt hurt, sir. But we No, always coordinate on the phone with the team. Thank you so much for all the courtesy and everything. My apologies if I was slightly No, rough. sir, not at all. Right? Sir, आपने जो And, आज बातें हमें कही है, and I also penned down in my mobile, लेकिन हमने ये भी रखा है, इसमें भी लिखा है, and the way you spoke about the youth program, sir, we on behalf of the entire Bharat Icon family, जब हमारा beauty pageant होता है, we also do workshop for teens, और teens भी होते हैं, तो हम जरूर चाहेंगे that we all, including me, we all should be trained under you. So we look forward to this wondrous association, dear sir, and we're truly humbled that you stayed here with us for the entire 2-hour session, sir. Thank you so much, dear sir. Thanks a ton. My very sincere thanks to my friend Akhil ji, and to you, and to Madam Bini ji and Chakrapani ji and everybody. Grateful to you, and Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you to everyone. Thank you, Ms. Namrata, for really taking care of everything. And thank you, sir, Akhil Bansal, sir. We are all rejuvenated with everything that we've learned, only to truly work on ourselves and try and find that beauty within us. हम सबको अपनी खूबसूरती हमारे अंदर ढूंढनी है, और इस point of time जब pandemic हुआ था तो हम यही कर रहे थे, और बस इसी इंट्रोस्पेक्शन से मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने हमें इतना आपका वक्त दिया और इतना कुछ सिखाया. डॉक्टर बिनी मैम, इतनी खूबसूरती से हम जरूर चाहेंगे कि आपसे भी हम जरूर वो शिक्षा लें और प्राप्त करें, और वो एहसास करना चाहेंगे कि किस तरह मौन व्रत से और जो फास्टिंग व्रत जो गांधी जी बिलीव करते थे उससे हम फायदा उठा सकें. हम thanks to each and every one of you. तो मैं इजाजत चाहूंगी अब, और यही कहना चाहूंगी कि तहे दिल से आज इतनी मैं खुश नसीब हूँ कि हमारे स्कॉलर्स से और हमारे डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज से सबसे मुलाकात हुई, हमारे स्पिरिचुअल गुरुज का आशीर्वाद मिला. बहुत बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस. Thank you, Simran. Thanks a lot. Thank you. Thanks so much. Thanks, sweetheart. Sweetheart, I'll have to go at my USA show. So, man, with Rajpal Yadav, so I'll just change and come. Yeah. Thank you. Thank you, Akhil, sir. I'll call you all, sir, at 11 o'clock when I'm free. Very nice. Thank you, sweetheart.